नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से, जिन्होंने आज दिल्ली की जनता से एक अपील की है और कहा है कि दिल्ली में आप भाजपा को वोट दें। साथ ही आंध्र प्रदेश की जो जनता इस वक्त दिल्ली में रह रही है, उनसे भी उन्होंने खास अपील की और उनसे भी कहा कि बीजेपी को वोट दें और बीजेपी की सरकार बनाए दिल्ली में। Now what I am saying, you have to understand, common men are becoming middle class. Today, rich people is on the one side, maximum chunk are becoming middle class, poor people are on the other side. You wanted to empower people, middle class is also important. That is where 12 lakh income tax exemption is going to help. That is where I am saying poor people and rich people have to join together. That is where P4. Additional support, additional hand-holding, mentoring and giving everything for them is required. That we have to work. That is where Government of India also saying zero poverty. So these are all very interesting. We are all ignoring middle class. Middle class are having high aspirations to reach next level. When aspirations are there, how to fulfill their aspirations? Then government has to do something. That is the budget they have supported. So I can say 15-20%, 10% top people, 60-70% middle class, 20-30% our ratio of poverty. That is where now we have to measure 1 lakh income, 1 lakh to 10 lakhs, then go for micro enterprise, then go for small industries, small scale, then medium. This is where you have to measure how to create wealth for the people. That is where I am saying one family, one entrepreneur, one family, one AI. That is a game changer. All people are here because I am telling you, people are talking AI, people are talking today WhatsApp governance. We introduced WhatsApp governance. In Delhi, only on slogans, they want to pollute the climate. Even people's mind, they want to pollute. Through weather, your health, they want to pollute. So it is a totally failure model. There is no doubt about it. Another thing I am telling you loudly in this capital, those who will create wealth, they can talk about welfare. Without creating wealth, you cannot talk about distribution of welfare. That is another thing. You wanted to create wealth, you have to develop the state. Only through development, wealth will be created. So, political pollution, because you compared the two, air pollution and political pollution. That is what I am saying. Today you have seen, one is air pollution, highest in the world. This is one capital, highest pollution, weather pollution in the world. Who is responsible? Second, poorest place, it is becoming day by day poorer and poorer. Deficit finance. Today, for the last 31 years, Delhi has become deficit. What it means? This is the model not acceptable globally. People have rejected. Now we have to move different model. That is where Narendra Modi ji model. Delhi needs Narendra Modi ji oxygen. Then only you are all going to breathe. Otherwise you are not going to breathe. Comfortable life only NDA can give here. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की। दरअसल दिल्ली में चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस है और आम आदमी पार्टी को घिरती नजर आ रही है। चूंकि दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी यह दावा भी कर रही है कि एक बार फिर से दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों को लेकर के कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी हमला बोला है। देखिए, तीनों पार्टियों ने ये, क्योंकि केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था, किस तरीके से फ्री में क्या देना, तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, एक या दो ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है। जहां जहां पहले कूड़े नहीं थे, आज उन कूड़ेदानों पे आज बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। तो दोनों जनों को जब जमीन पर देखती है बीजेपी और आम आदमी को लोग, तो लोग निराश हो जाते हैं और उनको 10 साल पुरानी कांग्रेस याद आने लगती। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी नेता व जो है संजय जायसवाल, वो भी दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सबक सिखाएगी। 2 दिनों से मैं भी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्रवास कर रहा हूं। जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, वैसा कभी भी देखने को नहीं मिला था। दिल्ली की जनता बिल्कुल डिटरमाइंड है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वहीं पर पहुंचा देना है जहां पे कांग्रेस आज खड़ी है। इंडी गठबंधन का हश्र बढ़ जाने के बाद भी वही होगा जो कि लोकसभा के चुनाव में हुआ था। लोकसभा में भी हम 7 सीट जीते थे और इस बार विधानसभा में भी भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। देश की और दिल्ली की प्रत्येक जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है और मोदी जी की गारंटी पर प्रत्येक दिल्ली का नागरिक आज भाजपा को और एनडीए को वोट कर रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी नेता संबित पात्रा और बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत की, जिन्होंने जल संकट के बीच बिजवासन विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान संबित पात्रा ने अपनी बातों को भी रखा और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनेगी। कॉन्फ्रेंस है और ये एक अनूठे तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज हम सड़क पे उतरे हुए हैं। आदरणीय कैलाश गहलोत जी पूर्व में मंत्री रहे, 2 बार के विधायक रहे, तीसरी बार विधायक बनने वाले हैं। बिजवासन से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कल रात को फोन किया कि संबित जी आप बिजवासन आइए, और किस प्रकार से यहां पर करप्शन हो रहा है, पानी को लेकर घोटाला हो रहा है, वो आपको हम दिखाते हैं। इस विषय को पूरे भारतवर्ष में एक केस स्टडी बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार से पानी का घोटाला किया है, इस घोटाले को हम एक्सपोज करेंगे। तो आज सुबह 7:30 बजे से हम निकले। सड़कों की स्थिति आप जानते हैं दिल्ली में। अब आपके सामने पहुंचे हैं और आपको एक अनूठी चीज दिखाएंगे बिजवासन में, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आपने कापासेड़ा क्षेत्र में, कापासेड़ा गांव में, कापासेड़ा कोई साधारण स्थान नहीं है, कापासेड़ा के विषय में दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। सोचिए कापासेड़ा में ये जो तारें ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। मैं भी यही सोच के आ रहा था कि ये बिजली की तारें हैं। विश्व में पहली बार मालूम पड़ा कि ये तारें नहीं हैं, ये होस पाइप्स हैं। ये इसमें बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। आपने ऐसा, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि वो इसको वेनिस, पेरिस, लंदन बनाएंगे। ऐसा वेनिस बनाएंगे, मतलब कलान हमारे सर के ऊपर से जा रही है, पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। माननीय गहलोत जी भी हमारे साथ हैं और आप देखिए, ये जो सारे दिल्लीवासी देखे, हिंदुस्तान देखे, ये जो आज तार दिख रही है, मुझे डर नहीं है इसे छूने में क्योंकि बिजली नहीं लगने वाली है। ये पानी के पाइप्स हैं जो हर घर में सप्लाई के लिए जा रही है। और ये पाइप्स आती कहां से हैं, जाती कहां है, कैसे ये सप्लाई चल रहा है। फार्म हाउस में
जो टैंकर माफिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है और ये टैंकर माफिया अपने यहां भूजल, जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं और हर घर में एक पाइप जा रही है। इसके साथ एक मीटर भी लगा है, एक प्राइवेट मीटर लगा है और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से पैसा अरविंद केजरीवाल जी के मित्र, अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको टेंडर दिया है, चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है, वसूली होती है इन तारों से, इन पाइप से। आइए आगे देखते हैं, आप देखिए कैसे हर घर की सप्लाई इन पाइप से हो रही है। जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है, ये जल बोर्ड का, बिल्कुल मुझे गहलोत जी बता रहे हैं, जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है, सब प्राइवेट पानी, सब प्राइवेट पानी है, जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है। और जब इतना बड़ा प्रकल्प चल रहा है, मैं कहूंगा ये पूरा अपने आप में एक प्रोजेक्ट यहां चल रहा है, तो स्वाभाविक है इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होगी, इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी इन्वॉल्व होगा, इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। अब बिना उनके इच्छा के ये सब तो नहीं हो सकती है ना। आप देखिए, ये सब तो उनके बिना इच्छा के तो नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं वहां, देखिए एक घर में जा रही है, कैसे पाइप जा रही है, आप देखिए, ये सब उनके इच्छा के बिना तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हम देख सकते हैं, एक साधारण आदमी देख सकता है। क्या ये माननीय मुख्यमंत्री अतिशी जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल आज बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश में आज बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों द्वारा त्रिवेणी संगम की और जाते समय पुष्प वर्षा भी की गई। प्रयागराज में ये तस्वीरें जो है वो लोगों को काफी आकर्षित करती नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि निर्मोही अनी अखाड़े के स्वामी अवधेश कुमार दास ने भी जो है वो अमृत स्नान किया और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सराहना की। देखिए, हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है और हम सभी वैष्णव लोग, चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव, आज के दिन इस अमृत स्नान को करते हैं। पूरे देश विदेश के जितने भी वैष्णव समाज के लोग हैं, तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। निर्मोही अनी अखाड़ा के अंतर्गत हम सभी लोग अपने अपने परिकर के साथ, अपने अपने संत महात्माओं के साथ, त्यागी तपस्वियों के साथ जो साधनारत हैं, इस पर्व का आनंद लेने के लिए, इस पर्व का पुण्य कमाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। आज इस कुंभ महापर्व का अंतिम शाही स्नान है और इसको हम लोग बड़े धूमधाम से सनातन परंपरा के अंतर्गत इस पर्व को सारे वैष्णव जगत के लोग इसको मनाते हैं। आज का बड़ा महत्व है। इस अमृत स्नान में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस सनातन अमृत स्नान महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देश खुशहाल हो, स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रयागराज में अमृत स्नान को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और साथ ही अमृत स्नान के दौरान पुष्प वर्षा भी की जा रही है। इस बीच डीआईजी महाकुंभ में वैभव कृष्ण ने भी जो है सुरक्षा को लेकर के जानकारी दी है। देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे।
बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज में अमृत स्नान को लेकर के विदेशी श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। कई सारे विदेशी श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुमतिनी वार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेस कुंडल कुंचित केस आत ध्वजा विराज खंडे मुज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को तुम रोच सगावेन हस कई श्रीपति कंत लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल जहांत Saki snans, but this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday. Dipping here, it's something I don't have words to explain. Just very grateful. Yes. How will you elaborate your experience after the holy dip in the Triveni Sangam? That's beyond words, no? It's Really from Russia. From Russia? Yes. From Russia to the world's largest religious gathering. That is Mahakumbh in Prayagraj. How it feels like here? Wonderful. It's my second Kumbh Mela. I was here 12 years ago. So it's your second Kumbh Mela. It's Mahakumbh. It's Mahakumbh and it's Amrita Snan. How excited you are for this? It's Shiva blessing. अनुभव है आपका स्नान के बाद? This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many. Right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. Amrita Snan, it's Amrita Snan and you have also taken a dip. Yes. The holy Triveni Sangam. Yes. How exciting, how exhilarating it is. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Nagavavas and it just brings back everything. Sadhus and saints always say, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. And here we can see it. We can feel the whole world is one. Sab ek hai. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. I'm very excited. Every time is like a first time and you never know what to expect. So super excited. It's your first Snan after your marriage, so what are the priorities of yours to take Snan? It is my second Snan after marriage, and as I said, everything is new. So I try to keep my expectations low. So I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. My name is Penelope Khana. Thank you. elaborate. There's nothing to elaborate. There only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, you know, to your heart, you know. Just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. You have taken a holy dip in Triveni? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends and to share to friends, and also some people who left, and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to enjoy. Har Har Mahadev. Thank you. बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी पहुंची और उन्होंने भी बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान किया और साथ ही ये भी कहा कि किन्नर अखाड़े में सब कुछ ऑल इज वेल है। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का। हम सब प्रसन्नित हैं, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा।
हमने यही कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले यही हमारा प्रयास है। महाराज से हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से। क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े जा? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान करते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए बता दिया है कि केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली में कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की, कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की, अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जेपीसी की। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं मेधा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में उन सभी साक्ष्यों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो संयुक्त समिति के समक्ष पेश किए गए थे। यह साक्ष्य विधेयक के प्रावधानों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अहम है और इनका उद्देश्य विधेयक के प्रभावी और न्याय संगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। नहीं, वो जब स्पीकर साहब एजेंडा पे देंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो हम उसको प्रस्तुत करेंगे। नहीं, वो जब स्पीकर साहब एजेंडा पे देंगे और बिजनेस एडवाइजरी। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।